इस मंडी का बेनिफिट इसी में है, कोचिंग मंडी का, कि आप हमेशा समथिंग न्यू एवरीडे समथिंग न्यू, आप नए चीज की तलाश करें, है ना, और बस आप उसमें बढ़ते रहें। वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ निगेशन एक्चुअली। आज का दुनिया कैसा हो गया है? निगेशन एंड ट्रॉलिंग। और उस दुनिया में रहते हुए वी फेल टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ कि नहीं, मैंने जो लर्न किया है दैट इज गुड। मेरे ही स्टूडेंट्स के हैं, ऐसा नहीं कि किसी और के स्टूडेंट का है, राइट, है ना। 299 भी है, 190 भी है, 290 भी है, 190 भी है ना। उनके पेपर भी मैंने ही रिव्यू किए, राइट, मैंने ही मार्क्स दिए, राइट। लेकिन जब एनालाइज कर रहा हूं, मतलब रिवीजन के कोर्स में आफ्टर कंप्लीटिंग लर्निंग ऑफ द होल सिलेबस इन कोर्स ऑफ रिवीजन you should reflect on complete knowledge matrix of the syllabus, yes ना, right, and वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, है ना। फर्स्ट गो में जो भी सोर्स रेफर किया, राइट, आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, लर्निंग द सिलेबस, व्हेन यू स्टार्ट रिवीजन, तो रिवीजन इज रीलर्निंग द सिलेबस बट विद डिफरेंट अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव। रिवीजन इज रीलर्निंग द सिलेबस विद डिफरेंट अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव, यस ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता कि इतना ज़्यादा ये कैओस है अभी कंटेंट को लेके, इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज देयर, टॉपर्स, स्टडी मटेरियल, राइट। खासकर सोशियोलॉजी में जब से एक ये बुक पे डिपेंडेंसी बढ़ा है लोगों का, अभी मेरा फ़ोन लाना भूल गया, नहीं तो लास्ट 3 डेज से एक टेलीफोनिक फोन, व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन, चैट इज़ गोइंग ऑन विद सम ऑफ द एस्पिरेंट, पता नहीं कौन है वो, लेकिन उन्होंने एक आंसर भेजा, मैंने उस पर रिप्लाई किया, फिर उन्होंने दोबारा लिख के भेजा, सेकेंड टाइम शी रोट, फिर मैंने रिप्लाई किया कि नो वेयर, यू नो, नो डिफरेंशिएशन इफेक्ट इन योर आंसर। फर्स्ट टाइम शी डिड कट पेस्ट ऑफ, यू नो, वो डार्क एज, फिर चेंज एज, फिर फ्रॉम अ बुक एक्चुअली, एंड रोट everything from that book. I suggested कि try to differentiate because that is the most generalized thing to do, right? फिर differentiation में remove that diagram but wrote again everything from that book without bothering, you know, कि what is context or demand of the question, isn't it? Question is कि what aspects of enlightenment led to emergence of sociology, right? And she is writing everything given in that book. और कल को ब्लेम करेंगे कि सोशियोलॉजी में मार्क्स नहीं आया, नहीं आता, isn't it? फिर मैंने इंक्वायर किया कि भाई what you have referred, how you have studied. तो सर I have attended class, I have referred IGNOU का material and I am doing a revision from this book. Yes ना, मतलब forgot everything, you know, of IGNOU and classes and finally revision from one particular book, and that is causing generalization effect, है ना। रिवीजन का मतलब होता है कि रीलर्निंग माई ओन नोट्स, isn't it? Relearning that time and again with some different, you know, approach and perspective, isn't it? Different approach and perspective. अब आप कहेंगे कि सर how to differentiate approach and perspective, right? So when you learn particular topic, for example, modernity and social change in Europe and emergence of sociology, isn't it? So for the first time you will limit yourself to some basic, you know, content, isn't it? Basic dimensions, basic point of views,
right? Ki what is modernity, what is social change, right? How Renaissance Enlightenment induced modernity in European society, modernity embodied in commercial revolution, French revolution, commercial revolution and scientific revolution crystallized by French revolution and industrial revolution, isn't it? Then you will learn changes in social structure, social system, social interaction, isn't it? Then intellectual discourses over the changes, political changes पे, social changes पे, discourses of intellectuals, isn't it? And then some scholars, like Auguste Comte, Herbert Spencer, they borrowed intellectual ideas, scholarly ideas to propound, some theories, isn't it? And thus emergence of discipline, है ना? Discourses on changes and challenges, discourses of radicals and conservatives, isn't it? Two types of intellectuals. ये सब पढ़ लिया, yes ना? First go में इतना ही, right? But after completing syllabus, you will get new insights कि how Hegelian writing influenced Karl Marx, how ideas of Kant influenced Max Weber, isn't it? How general will theory of Rousseau, right, inspired Emile Durkheim, social contract theory and all, isn't it? So if you are writing any other question related to that topic, है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख रहे हैं कि चेंज इन इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यस ना, या फिर हाउ इनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस्ड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट? सो आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, आफ्टर कंप्लीटिंग थिंकर्स, you will refer to thinkers and you will add something in your answers. So first go में learning part, compartmentalized learning, yes ना, compartmentalized learning. Second go revision part, revision part में क्या, adding some value to different compartments of syllabus by doing correlations, isn't it? Backward forward linkages, isn't it? From my own sources, मेरे अपने सोर्स से ही, isn't it? And optimizing my knowledge matrix, मेरे अपने knowledge matrix को एक particular topic पे मैं क्या करूँगा, optimize करूँगा on my study table, yes ना, library में भी, right? Getting a point, है ना? So this is the way, right? अब ऐसा करेंगे कि नहीं, फर्स्ट चलो इधर क्लास कर लिया, अब चलो कोई टॉपर का नोट ले लिया, सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग कोई दूसरा टॉपर का नोट, फोर्थ रीडिंग कोई नया बुक जिसका कलर प्रेजेंटेशन, जिसमें ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट्स अच्छा देखने में लगे उसको. सो दैट इज़ नॉट रिवीजन, एक्चुअली दैट इज़ नॉट रिवीजन, वो रिवीजन नहीं है. आपका अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग रिवीजन शुड चेंज सब्सटेंशियली फ्रॉम दैट ऑफ लर्निंग, यस ना, राइट? आप में से कुछ लोग हैं जैसे, तो अभी जो इनका ये कि हाँ अब क्या समझ में आ रहा है, उस दिन आप क्या बोल रहे थे, क्या समझ में आ रहा है? इंटरलिंकेजेस, डूइंग इंटरलिंकेजेस, एंड खुद से भी आपको यू विल फील, you are optimizing your answer, you are optimizing your answer, अपने आंसर को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट? आप बहुत ज्यादा कंटेंट के लिए यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बुक्स एंड नोट्स. लो, यूज ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ IAS. यूज ऑफ नॉलेज, एफिशिएंसी इन यूज ऑफ नॉलेज. नॉलेज तो एक बार में आ जाता है, अब उसके बाद choice is yours कि whether you are focused on improving efficiency of usage of knowledge by doing correlation, application, isn't it? Right? Application means relating concepts and theories to social facts visible in society,
और you go on reading new sources, new books, new notes, ये चॉइस आपका है ना, राइट। इस मंडी का बेनिफिट इसी में है, कोचिंग मंडी का, कि आप हमेशा समथिंग न्यू एवरीडे समथिंग न्यू, आप नए चीज़ की तलाश करें, है ना, और बस आप उसमें बढ़ते रहें। वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ निगेशन एक्चुअली। आज का दुनिया कैसा हो गया है, निगेशन एंड ट्रॉलिंग। और उस दुनिया में रहते हुए वी फेल टू अप्रिसिएट आवर सेल्फ कि नहीं, मैंने जो लर्न किया है दैट इज गुड। निगेशन की दुनिया है, ट्रॉलिंग का दुनिया है, क्रिटिसिज्म भी लाइक क्रिटिसिज्म, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। कोई आदमी को कुछ गाली दे देता है, हाँ ठीक बोल रहा है, गांधी को समझने के बजाय द पर्सन हु अब्यूजेज हम कहते हैं हाँ ये भी तो ठीक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी तो एक व्यू है ना। सो दिस इज, तो ऐसा नहीं, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है ना। वॉट एवर यू लर्न, रिवाइज, ऑप्टिमाइज, एप्रिसिएट, एंड अगर ये सब ठीक हो रहा है देन यू विल रिप्रोड्यूस योर नॉलेज एफिशिएंटली, यू विल यूज योर नॉलेज एफिशिएंटली इन एग्जामिनेशन हॉल, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। अभी जैसे मार्क्स स्टेटमेंट आया तो मेरे पास तो फ़ोन में ही रहता है, सबका पेपर भी रहता है फ़ोन में, है ना, टैब में, फ़ोन में पेपर रहता। तो जिसके मार्क्स जैसे 210 भी है, 190 भी है, यस, कि किसी को 299 और किसी को, तो बस पर्सनालिटी डिफरेंसेस समझ में आ रहा है ना, कि एक स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसको पेपर 2 में 153 मार्क्स, पेपर 1 में डिस्पाइट मिसिंग 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन लिख नहीं पाए, फिर भी 136 मार्क्स, यस ना। एक किसी का फर्स्ट मेंस था, 5th अटेम्प्ट फर्स्ट मेंस, राइट, और ये मान के कि इस बार भी नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता,